ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے MQM PSP قائدین اور فاروق ستار کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ گورنر سندھ نے معاملے پر وفاقی حکومت سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ بات کریں گے عاجز جمالی سے۔ عاجز بتائیے گا، بڑی بیٹھک لگی ہے آج؟ جی ہاں، یہ 1-1.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی جو اب اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اس میٹنگ میں گورنر ہاؤس پہنچے تھے MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول اور ان کے ساتھ وسیم اختر، خواجہ اظہار الحسن اور دیگر رہنما تھے، جبکہ PSP کے مصطفیٰ کمال، انیس فہم خانی اور دیگر رہنما تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار تھے MQM تنظیم بحال کمیٹی کے۔ ان تمام رہنماؤں نے تحفظات کا اظہار کیا جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ 15 جنوری کو کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے۔ گورنر سندھ کے سامنے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور گورنر سندھ نے یقین دلایا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے رابطہ کریں گے اور MQM کے تحفظات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ لیکن کیونکہ اب میٹنگ ختم ہو چکی ہے، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ گورنر سندھ نے وزیر اعظم ہاؤس سے رابطہ ضرور کیا ہے، لیکن انہیں بتایا گیا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ملک میں نہیں ہے، وہ آج جنیوا میں تھے، تو اس کانفرنس کی وجہ سے گورنر سندھ کا اب تک وزیر اعظم سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ البتہ کل یہ امکان ہے کہ گورنر سندھ کا وزیر اعظم پاکستان سے رابطہ ہو اور ان MQM اور PSP کے جو تحفظات ہیں ان سے وزیر اعظم کو آگاہی دی جائے۔ بہت شکریہ آپ کا عاجز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ نئی ووٹر لسٹ پر انتخابات کرانے کی MQM کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن سے متعلق MQM کی درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن نے ہر صورت 15 جنوری کو الیکشن کرانے کا حکم دے دیا۔ انتخابات پرانی ووٹر لسٹوں پر ہی ہوں گے۔ انتخابات کے التوا کا سندھ حکومت کا موقف بھی مسترد کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ دیا گیا۔ 15 جنوری کو سندھ میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات میں رینجرز کو دوسرے درجے اور فوج کو تیسرے درجے پر تعینات کرنے کی درخواست کر دی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر پاک فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی جائے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری سندھ کو پولنگ اسٹاف کو RO آفس سے بیلٹ پیپرز کی پولنگ اسٹیشن تک ترسیل کے لیے سیکیورٹی بھی یقینی بنانے اور ووٹ کی گنتی اور بیلٹ پیپرز کی RO آفس سے واپسی کے لیے یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ MQM پاکستان نے الیکشن کمیشن کے بلدیاتی الیکشن سے متعلق فیصلے کے خلاف عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان MQM پاکستان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی واحد ذمہ داری ہے، لیکن اسے پورا نہیں کیا گیا۔ PTI سندھ نے 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ PTI کے صوبائی دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب میں علی زیدی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے زبردست اعلان کیا ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے دن PTI کے لاکھوں ووٹرز باہر نکلیں گے۔ PTI صوبائی صدر نے کہا کہ ان کے پاس مصدقہ معلومات ہیں کہ پولنگ کے دن ہنگامے کرائے جائیں گے، اس لیے خونی الیکشن کا خدشہ ہے۔ بہت ریلائبل سورسز سے اطلاع ہے کہ 15 جنوری کو الیکشن، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہار رہے ہیں، ان کے تو مطلب انہوں نے تو UC بھی پوری نہیں خرید، 200 UCوں پہ کھڑے ہیں یہ 246 میں سے، لیکن یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے۔ تو میں آپ کو بہت ریلائبل سورسز سے بتا رہا ہوں، میرے پاس ان کے کیمپس کے اندر سے اطلاع ہے کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور پوری ان کی پلاننگ ہے دھاندلی کرنے کی، کھلے عام پولیس کو استعمال کرنے کی، اور کیونکہ تحریک انصاف کے ممبران یا ووٹرز کی تعداد بہت بڑی ہوگی تو ہنگامہ آرائی کرنے کی۔ PTI رہنما نے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے تمام پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دے کر پاک فوج اور رینجرز کو تعینات کیا جائے۔ جماعت اسلامی کراچی حافظ ضیم الرحمان نے بلدیاتی انتخابات میں فوج کی تعیناتی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ الیکشن میں فورسز تعینات ہوگی تو دھاندلی نہیں ہوگی۔ میں پریس کانفرنس سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ شہر اب جماعت اسلامی کا میئر چاہتا ہے۔ جو لوگ لوٹ مار کا بازار گرم رکھتے ہیں انہیں جماعت شکست دے گی۔ بہت بڑے پیمانے پر کل باغ جناح میں شریک ہو کر یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں
बल्दियाती इंतखाब चाहते हैं, इस शहर में जमात इस्लामी का मेयर देखना चाहते हैं, जमात इस्लामी के पास पूरी बल्दिया का निज़ाम देखना चाहते हैं और शहर की तामीर व तरक्की देखना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आवाम से राब्ते का ये सिलसिला हम मज़ीद तेज़ करेंगे और 15 जनवरी को जो इंतखाब है उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अमीर जमात इस्लामी कराची ने पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और फौज की तैनाती का मुतालबा किया और बोले इलेक्शन कमीशन फौज तलब कर सकता है और इसे तलब करना भी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और वाज़ेह मुतालबा है कि हर पोलिंग स्टेशन पर, कराची में 4900 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है और ये तमाम के तमाम हसास हैं, इन तमाम पोलिंग स्टेशनों पर पाक आर्मी और रेंजर्स के जवानों का स्ट्रेटिक तकर्रुर होना चाहिए, तैनाती होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि लिसानी बुनियादों पर जो लोग तफरका फैला रहे हैं इन्हें इस शहर ने रद्द कर दिया है। ये अब सिंधी महाजिर लड़ाई को फरोग नहीं देगा। इस शहर की आवाम ने जमात इस्लामी का साथ देना कर लिया है। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सियासी इंजीनियरिंग और धांधली की पैदावार इमरान खान की सियासत का महवर झूठ पर मबनी है। डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कप्तान पर लफ्जी निश्तर चलाए। बोले नैब मुतहरिक हुआ तो आधी से ज्यादा पीटीआई जेलों में होगी। एस्टेब्लिशमेंट का अब सियासत में कोई किरदार नहीं। आज भी उसके खिलाफ केसेस सारे नैब में, कभी कोई इनके नोटिस जा रहे हैं, कोई नोटिस जाने पे तैयार नहीं है। नैब भी अगर उसी तरीके से एक्टिव हो जिस तरह पहले हुई तो मैं समझता हूँ कि आधी पीटीआई की क़यादत जो है वो जेलों में होगी और विद फैमिलीज होंगे काफी लोग। तो शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इलेक्शन में खूनी मार्च वाली बात को अली जैदी को साबित करना होगा। सब मालूम है काउंसलर का इलेक्शन हारने वाला शख्स वफाकी वजीर कैसे बना। बल्दियाती इलेक्शन में कोई वाकया पेश आया तो इन्हें शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अभी नई बात कहना कि खूनी इलेक्शन होगी, इस बात को कोई और भले कुछ भी समझे, मैं इस चीज को बहुत सीरियस ले रहा हूँ। अगर खुदा न खास्ता कराची में किसी भी किस्म की कोई चीज हुई तो जिस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि एडवांस में इस तरह की कोई बात कहना कि जी खूनी इलेक्शन होंगे, इसका मतलब आप अभी से टेरर फैलाना चाहते हो। जमात इस्लामी ने 2013 में अपनी हार को देखते हुए इलेक्शन का बॉयकॉट किया। 2 बार मेयरशिप मिली, बताएं कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट कराची को दिया। इन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया 2018 में दोपहर के टाइम पर। 2013 में किया था, 13 में इन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट कर लिया। अब वही जमात इस्लामी 2 दफ़ा इनका मेयर बन चुका है कराची के लिए, कराची में 2 दफ़ा। मुझे एक कोई मेगा स्कीम बता दे जो जमात इस्लामी को दो टेन्योर मिले कराची में मेयर के, इन्होंने कोई बहुत बड़ा एक कोई काम कारनामा किया हो, कोई एक बहुत बड़ी स्कीम लेके आए हो। एक स्कीम का नाम ले लें जमात इस्लामी की लीडरशिप। सूबाई वजीर का कहना था कि कराची समेत सिंध में जितने काम पीपल्स पार्टी ने किए किसी और ने नहीं किए। वोट बातें करने से नहीं काम करने से मिलेंगे। सिंध हुकूमत 65 आटा फराहम कर रही है। इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने एमक्यूएम के बल्दियाती इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि रेगुलर बेंच ही इस मामले पर समाअत करेगा। अदालत ने समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का रूबरू इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर समाअत हुई। तारिक मंसूर एडवोकेट ने मुत्तफ़िक मौक़िफ़ अपनाया है कि जब बल्दियाती इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ, इलेक्शन कमीशन का कोरम पूरा नहीं था। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक नोटिफिकेशन ही गैर कानूनी है। कराची के 2 अजला में नए और पुराने एडमिनिस्ट्रेटर 5 रोज़ से अदालती और हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। अवामी खिदमत की फराहमी के अमल को ब्रेक लग गया है। इख्तियारात की लड़ाई में सरकारी मुलाजिमीन पिसने लगे। बल्दिया शर्की हो या कोरंगी, बहाल शुदा एडमिनिस्ट्रेटर्स चार्ज संभालने को तैयार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मुअत्तल शुदा एडमिनिस्ट्रेटर बदस्तूर सीट पर बराजमान है। कानून की हुक्मरानी न होने से बल्दिया कोरंगी के 5,500 मुलाजिमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजिमीन जो है तनख्वाह के हवाले से बेहद परेशान है और 19 दिसंबर के बाद से जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का मामला हुआ उसके बाद जो है वो ऊँट किसी करवट बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी तक ये हो नहीं पा रहा है कि दोनों में से बैठेगा कौन। देखें जी, सबसे पहली बात है कि हमारे पास तो अपना खर्चा ही नहीं है।
कि हम कहाँ से करेंगे, कैसे जाएंगे। ड्यूटी हम घर नहीं संभाल पाए तो ड्यूटी कैसे करेंगे। और यहाँ पर रिटायर्ड मुलाजिमीन ऐसे भी हैं जो इन दोनों बड़ों की लड़ाई में भूल रहे हैं बेचारे। कई लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ पर रोते हुए आते हैं, रोते हुए जाते हैं। मुलाजिमीन कहते हैं कानूनी इख्तियारात रखने वाले एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं, ना म्यूनिसिपल कमिश्नर। पहले ही महंगाई ने परेशान कर रखा है। तनख्वाह ताखीर से मिलने पर यूटिलिटी बिलों के जुर्मानों का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एक तो घर के अखराजात के अंदर बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं। स्कूल की फ़ीस बच्चों की होती है, उसके अंदर प्लेंटियाँ लगना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसी अगर बीच के इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखें या गैस का बिल देखें अगर आप, तो उसके अंदर भी अगर लेट हो जाते तो उसको ओवर चार्जेस देना पड़ता है हम लोगों को। इसमें बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। बड़ा कि ये बड़े अफसरान की लड़ाई में ना गरीब मुलाजमीन का इस्तेसाल हो रहा है। उनको कोई परेशान हाल नहीं है कि वो किराए के जो मकान पे हैं वो बेचारे परेशान हैं। आने जाने का लोगों को पास किराया नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है कि मुझ जैसा 14 ग्रेड का आदमी भी अफोर्ड नहीं करता। बल्दिया कोरंगी और शर्की में मजदूर यूनियंस पर मुलाजमीन का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। इलेक्शन ड्यूटी में भी तनख्वाहों की अदम अदायगी आड़े आ रही है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अहमद, सिटी 21। यहाँ से लियारी का बेशतर ट्रैफिक गुजरता है, लेकिन फुटपाथों, सड़कों, गलियों और चौराहों पर हद दर्जा तजाविज़ात के बायस हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है। यहाँ पर तो तकरीबन 24 घंटे यही हाल है, क्योंकि यहाँ पर आप आपके बैक साइड पे देखें तो ठट्ठा स्टाफ है तो पुराना, लेकिन उस टाइम इतनी ट्रैफिक नहीं थी। लेकिन अभी दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ रही है, तो इनको चाहिए कि ये कहीं और मुंतकिल करें। शहरी कहते हैं जब हर ठेले पथारे वाले से 250 से 300 यौमिया रिश्वत ली जाएगी तो इन्हें हटाना भी मुश्किल होगा। ये तजवात जो जितने ये रेडियाँ लगी हुई हैं, जितने ये जो है ना आते हैं वक्ती उठाते हैं फिर आ जाते हैं, वो घर तक पहुंचते नहीं हैं। इन लोग ने रेडियां ले आते हैं। जब आपने 250-300 रुपये रेडी देना है तो उसको कौन उठाएगा। इससे तो यहाँ पे पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा तो जब ट्रैफिक जाम हो जाती है तो उस टाइम तो कोई ट्रैफिक वाला नज़र ही नहीं आता। एम्बुलेंस वगैरह तो बिल्कुल फंस जाती है। ली मार्केट के मरकजी चौराहे पर बैरून शहर चलने वाली बसों का स्टैंड भी ट्रैफिक जैम का बड़ा सबब है। तजावजात से न सिर्फ आवाम का वक्त बल्कि ईंधन भी जाया हो रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया तजावजात का खात्मा करके रिलीफ फराहम। रमैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शाह फैसल 1 नंबर नाथा खान की सड़क 1.5 साल से खस्ताहाली का शिकार है। इस हवाले से हमना निसार की रिपोर्ट। कराची की मुतादिद सड़कों की तरह शाह फैसल नाता खान पंजाब ग्राउंड की सामने वाली सड़क भी बुरी तरह टूट फूट का शिकार है और अपनी असल हालत खो चुकी है। 1.5 साल से जायद अरसा गुजर जाने और इंतजामिया को बार बार दरखास्तें देने के बावजूद भी इंतजामिया गफलत से ना जागी। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क पर धूल मिट्टी उड़ने से सांस लेने का मसला है। कई बार हादसात भी हो चुके हैं। क्योंकि डस्ट उड़ती है। नॉर्मली जब गाड़ियों का यहाँ से फ्लो होता है, गाड़ियाँ जाती हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये डस्ट रोज़ाना तमाम साफ़ कर करके थक गए। वो हमारे को थॉट प्रॉब्लम हो रही है और जो है नोज़ प्रॉब्लम हो रही है, यानी मतलब इससे फ्लू वगैरह और इस किस्म की काफ़ी चीज़ें। दूसरी बात ये कि इससे जो है यानी मतलब छोटे मोटे एक्सीडेंट तो नॉर्मल होते हैं, गाड़ी का स्लिप हो जाना बच्चों के साथ और वैसे दीगर। दुकानदार भी सड़क की खस्ताहाली से परेशान हैं। इनका कहना है कि गर्द और गुबार की वजह से इनकी दुकानें कबाड़ का मंजर पेश करती हैं। यहाँ के जो दुकानदार है, जो ताजर है, उसको बहुत ही मुश्किलात है। हमारा खुद ये दुकान है, यहाँ पर दुकान को तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कबाड़ का दुकान का वो मंजर पेश कर रहा है। ये सड़क की इतनी बुरी हालत है कि हम क्या बताओ। मकीनों का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन से कबल अगर हमारे मसला हल ना करवाए गए तो वो इलेक्शन में किसी नहीं देंगे। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा हमना निसार, सिटी 21। सिंध में आटे का बहरान और कीमतों में इजाफा। सिंध सरकार का बड़ा एक्शन। सिंध सरकार ने नाअहली बरतने वाले डायरेक्टर जनरल कीमत और रसद डॉक्टर जमालुद्दीन जलालानी को ओहदे से हटा दिया है। बात करेंगे इस हवाले से आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबे भर में आटे के बदतरीन बहरान और कीमतों में बदतर इजाफे के बाद जो है बड़ा एक्शन ले लिया है और महकमा कीमत व रसद के डायरेक्टर जनरल जो है डॉक्टर जमालुद्दीन जलालानी उनको ओहदे से हटाकर महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। जबकि महकमा खुसूसी अफराद के एडिशनल सेक्रेटरी 19 ग्रेड के मोहम्मद सालिक मिर्जा उनका वहाँ से तबादला करके नया डायरेक्टर जनरल कीमत व रसद तैनात कर दिया है और इनको फौरी तौर पर इस सूरत पर काबू पाने की हिदायत कर दी गई है और फौरी तौर पर आटे की कीमतों पर कंट्रोल करने और जो
ذخیرہ اندوز کرنے والے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بھی سختی سے احکامات جاری کر دی گئے. اس حوالے سے محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن ان کو ایک کو عہدے سے ہٹانے اور دوسرے کی تعیناتی کے حوالے سے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. جی بہت شکریہ آزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. گورنر ہاؤس میں سیاسی جماعتوں کا اجلاس ختم. MQM PSP اور بحالی کمیٹی کے رہنما گورنر ہاؤس سے روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر سندھ کا رابطہ نہیں ہو سکا ہے. گورنر ہاؤس میں سیاسی جماعتوں کا اجلاس ختم ہو گیا. MQM PSP اور بحالی کمیٹی کے رہنما گورنر ہاؤس سے روانہ ہو گئے ہیں. بات کریں گے عاجز امانی سے. عاجز بتائیے گا، روانگی ہو گئی ہے اب تینوں جماعتوں کی؟ جی ہاں، یہ کوئی 1.5 گھنٹے سے زیادہ عرصہ یہ اجلاس رہے گورنر ہاؤس میں، جس میں MQM پاکستان، PSP اور تنظیم بحالی کمیٹی کے رہنما موجود تھے. کچھ وقت کے لیے ان جو 3 رہنما تھے انہوں نے گورنر سے میٹنگ کی، پھر اس کے بعد دیگر رہنماؤں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، جس میں MQM کی جانب سے وفاقی وزیر فیصل سبزواری، خواجہ اظہار الحسن، وسیم اختر بھی تھے، جبکہ PSP کے انیس قائم خانی اور دیگر رہنما بھی اجلاس میں شریک ہوئے. یہاں پہ گورنر سندھ نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان سے رابطہ کریں گے. وزیر اعظم ہاؤس سے ان کا رابطہ بھی ہوا، لیکن چونکہ بتایا ان کو گیا ہے کہ گورنر ان کو یہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے کہ وزیر اعظم اس وقت جنیوا میں موجود ہیں، ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں آج وہ شریک تھے، لہٰذا وزیر اعظم سے آپ کا رابطہ فوری نہیں ہو سکتا. تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ کل کسی وقت بھی گورنر سندھ کا وزیر اعظم شہباز شریف سے اس مسئلے پہ رابطہ ہو جائے گا. تو گورنر جو ہے ان تینوں جماعتوں کے رہنماؤں نے جن تفصیلات کا اظہار کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے پر وہ وزیر اعظم آگاہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا عاجز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.